Hello students, welcome to IE. In this video, we are going to discuss a numerical on the MOS capacitor or the capacitance of the MOSFET. You can see the question on the right hand side of the screen. In the question, you can see a diagram has been given, a 3D diagram of a MOSFET has been given, and in this 3D diagram, the dimensions of different places has been given. And we have to find, in the question they have told you to find the body to source or substrate to source capacitance, and in the question B they have told you to find the overlapping capacitance between the source and the gate. So let us see that. Now let's get started with the question. So question पे जो था उसी डायग्राम पे को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, or these are the data that has been given in the previous question, you can see. And in the question A, source body junction capacitance, and question B, the gate to source overlapping capacitance should be found. Now if you look at this diagram, actually this is the 3D diagram of a cross-sectional view of a MOSFET. So in this 3D diagram, you can see, if I ask you ki what is the name of the MOSFET, you can see the substrate terminal जो है वो substrate जो material है वो आपका P type substrate है. So if it is a P type substrate, so what will be the name of this MOSFET? So the name of the MOSFET will be N channel MOSFETs, or we can say NMOS. And this terminal is nothing but the body terminal, and this is the gate terminal, this is the drain terminal, and this is the source terminal. अब ये जो गेट टर्मिनल है और गेट टर्मिनल के ऊपर में यहां पे आप देख सकते हैं कि मेटल का एक लेयर है. सो दिस इज द मेटल लेयर. सो दिस वन इज द मेटल लेयर. दिस इज द मेटल लेयर. यू कैन सी दिस इज द मेटल लेयर एंड दिस इज द ऑक्साइड लेयर. सो ऑक्साइड लेयर का थिकनेस गिवन है 1 नैनोमीटर. अब देखिए ये डेल क्या है. डेल इज द ओवरलैपिंग length between the gate and the drain, and between the gate and the source also, and del value is given as 20 nanometer. मतलब ये overlapping region कितना है 20 nanometer का. अब width W is given by 1 micrometer. अब width क्या है? Width means this region, so this length is 1 micrometer. अब W depletion मतलब width of the depletion region is given as 10 nanometer. So what is this width of the depletion region? इसको अच्छी तरीके से समझना होता है. Then epsilon 0 is given, epsilon SI is given, epsilon SiO2 is given. So source body junction capacitance we need to find. So first focus on the question A. So we need to find the source body junction capacitance. अब उससे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो width of the depletion region यहाँ पे बोला गया है, ये width of the depletion region क्या होगा. अब देखो डिप्लीशन रीजन कहाँ पे होता है. डिप्लीशन रीजन आपका जब कोई एन रीजन और पी रीजन दोनों एक साथ होता है, एन रीजन पी रीजन, देन उसके बीच में जो जंक्शन क्रिएट होता है उस जंक्शन में आपका डिप्लीशन रीजन आता है. सो नाउ ये जो मॉसफेट का मुझे 3D डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो ये जो मॉसफेट है, सो ये मॉसफेट का पी सबस्ट्रेट है और ये मेरा सोर्स टर्मिनल है और सोर्स रीजन है जिस सोर्स को इस तरीके से डोप किया गया है. ये लेंथ बराबर डोप किया गया है. अब अगर ये पी सबस्ट्रेट होगा तो ये जो सोर्स रीजन है, ये सोर्स रीजन में कौन सा डोपिंग होंगे? वी नो दैट इट विल बी N प्लस डोपिंग. सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रेन पे आपका N प्लस डोपिंग होना चाहिए, तभी तो आपका ये मॉसफेट की तरह काम करेंगे. मतलब पी टाइप सबस्ट्रेट के अंदर यहाँ पे N प्लस डोपिंग, यहाँ पे N प्लस डोपिंग होगा तभी ये मॉसफेट होगा. सो दैट मीन्स अब अगर आपको बोला जाए कि कौन से जगह है जहां पे मेरा N और P का जंक्शन क्रिएट हुआ है. सो N और P का जो जंक्शन क्रिएट हुआ है, सो जंक्शन हैज बीन क्रिएटेड एट दिस रीजन. ये जो मेरा शेडेड रीजन है, इस शेडेड रीजन पे आपका जंक्शन क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ पे N प्लस, यहाँ पे P. सिमिलरली अ जंक्शन विल बी क्रिएटेड एट दिस शेडेड रीजन, एंड दिस शेडेड रीजन जो है यहाँ पे आपका डिप्लीशन लेयर क्रिएट होंगे. सो यहाँ पे आपका एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होगा कुछ इस तरीके से.
सो दिस इज द डिप्लीशन लेयर। सिमिलरली यहाँ पे भी एक डिप्लीशन लेयर क्रिएट होंगे कुछ इस तरीके से। सो ये जो मेरा 3D डायग्राम है, इस 3D डायग्राम को मैं 2D डायग्राम में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे? देखिए, सिर्फ सामने वाला जो पिक्चर है उससे कन्वर्ट कर सकता हूं। सपोज ये मेरा P सबस्ट्रेट है, सपोज दिस इज द P सबस्ट्रेट, ओके। सो दिस इज द P टाइप सबस्ट्रेट। अब P टाइप सबस्ट्रेट के अंदर N प्लस डोपिंग, तो अब इसके अंदर मैं N प्लस डोपिंग डाल रहा हूं। सिमिलरली इसके अंदर मेरा N प्लस डोपिंग रीजन। सो दिस इज द N प्लस डोपिंग रीजन, दिस इज द N प्लस डोपिंग रीजन। अब इसके ऊपर क्या है? मेरा ये ऑक्साइड का लेयर है जो मेरा थोड़ा सा सोर्स के ऊपर है, थोड़ा सा ड्रेन के ऊपर है और बाकी सारे ये सबस्ट्रेट के ऊपर है। सो दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ अ ऑक्साइड लेयर लाइक दिस। दिस इज द ऑक्साइड लेयर, you can see this is the oxide layer। और ऑक्साइड लेयर के ऊपर मेरा मेटल लेयर है। सो ऑक्साइड लेयर के ऊपर मेरा एक मेटल का लेयर है और यहां पे जो टर्मिनल है वो मेरा गेट टर्मिनल, और यहां पे जो टर्मिनल होंगे दिस टर्मिनल अकॉर्डिंग टू द पिक्चर इट इज द ड्रेन टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल आपका सोर्स टर्मिनल। सो दिस इज द 3D diagram, a 2D diagram of the given 3D diagram and this is the metal, you can see। और एक टर्मिनल है यहाँ पे, that is the body terminal। So in this way we can convert this 3D diagram into a simple 2D diagram। अब मैंने बोला कि डिप्लीशन लेयर जो क्रिएट होगा, that depletion layer will be created near the junction। अब जंक्शन कहाँ पे है? यहाँ पे एक जंक्शन होगा, पूरा जंक्शन, यहाँ पे भी एक जंक्शन होंगे। सो ये पूरा मेरा डिप्लीशन रीजन है। सो दैट डिप्लीशन रीजन कैन बी ड्रॉन एट दिस रीजन। ये मेरा डिप्लीशन रीजन होगा। सिमिलरली यहाँ से मेरा एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट होंगे कुछ इस तरीके से, और ये मेरा डिप्लीशन रीजन को मैंने शेडेड कर दिया। सो दिस इज द डिप्लीशन रीजन दैट हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द N प्लस P रीजन। सो ये भी मेरा डिप्लीशन रीजन, ये भी मेरा डिप्लीशन रीजन। अब ये विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन क्या है? 10 नैनोमीटर। दैट मीन्स मेरा जो विड्थ होगा, मतलब इसका जो विड्थ होंगे दैट विल बी 10 नैनोमीटर। सिमिलरली इसका जो विड्थ होगा ये डिप्लीशन लेयर का, दैट विल बी दिस 10 नैनोमीटर। सो इस ये रेड रीजन का विड्थ है 10 नैनोमीटर। सो 10 नैनोमीटर इस तरीके से 10 नैनोमीटर, यहाँ पे भी 10 नैनोमीटर, यहाँ पे भी 10 नैनोमीटर, यहाँ पे भी 10 नैनोमीटर। सो 10 नैनोमीटर का डिप्लीशन विड्थ क्रिएट हुआ है अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। नाउ वी नीड टू फाइंड द सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस। अब देखो, सोर्स यहाँ पे है, बॉडी यहाँ पे है। सो सोर्स और बॉडी के बीच में कहां पे कैपेसिटेंस होता है? सो नाउ इफ यू रिमेंबर दैट मेरे पास अगर कोई जंक्शन डायोड होता है, सपोज आई हैव अ जंक्शन डायोड लाइक दिस, दिस इज द P रीजन, दिस इज द N रीजन। तो जंक्शन डायोड के जंक्शन में मेरा एक जंक्शन कैपेसिटेंस होता है JC। सो एवरी डायोड विल हैव अ जंक्शन कैपेसिटेंस। टू टाइप का जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस और एक होता है आपका डिफ्यूजन कैपेसिटेंस, अनदर वाज ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। सो टोटली एक जंक्शन कैपेसिटेंस होगा। सो नाउ यू कैन सी ये जो मेरा सोर्स है, ये जो मेरा सोर्स है, तो सोर्स के और बॉडी के बीच में मेरा जंक्शन है। यहाँ पे जंक्शन डिप्लीशन विड्थ, उस डिप्लीशन विड्थ के लिए मेरा एक कैपेसिटेंस आएंगे। सो दैट मीन्स वी कैन से दैट ये जो मेरा सोर्स और बॉडी है इसके बीच में, मतलब इसके बीच में एक डायोड है, इसके बीच में भी एक डायोड है। सो आई कैन ड्रॉ लाइक दिस कि यहां पे एक डायोड है, दिस इज वन डायोड एंड दिस इज वन अदर डायोड। आई कैन ड्रॉ लाइक दिस, एज्यूम दैट मीन्स N प्लस P डायोड, N प्लस P डायोड। सो ये दोनों डायोड के लिए मेरा जंक्शन आएंगे। बट यहां पे पूछा गया है कि सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस, सोर्स और बॉडी के बीच में, मतलब मुझे सिर्फ सोर्स और बॉडी के बीच में चाहिए, ये वाला नहीं चाहिए, ड्रेन और बॉडी के बीच में नहीं चाहिए।
अब सोर्स और बॉडी के बीच में मुझे अगर जंक्शन कैपेसिटेंस निकालने हैं, सो जंक्शन कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस वैल्यू of the junction capacitance? We know that is a very simple solution, epsilon A by the width of the depletion region. ये मेरा जंक्शन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज करूंगा, तो लेट अस इरेज दिस डायोड। नाउ you can see that Cj मतलब junction capacitance will be epsilon into A divided by W. What is this W? W is the width of the depletion layer, तो इसको मैंने लिखा W dip मतलब width of the depletion layer. अब what is this epsilon? Epsilon is nothing but the permittivity of क्या? सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का परमिटिविटी है, क्योंकि मेरा जो जंक्शन क्रिएट हुआ है वो मेरा सेमीकंडक्टर के अंदर। सो दैट मींस ये जो एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन आपका सेमीकंडक्टर का परमिटिविटी है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट यू कैन सी दैट द एप्सिलॉन ऑफ द सेमीकंडक्टर, यहाँ पे सेमीकंडक्टर सिलिकॉन है, सो 11.7 गिवन है। सो दैट इज दिस एप्सिलॉन इज नथिंग बट एप्सिलॉन ऑफ सिलिकॉन। नाउ What is this W dip? W dip का मतलब width of the depletion layer, मतलब ये जो width है ये वाला width of the depletion layer. So width क्या given है? Width is given by 10 नैनोमीटर. So ये वाला वैल्यू आपके पास 10 नैनोमीटर का. So ये दोनों वैल्यू आपके पास है. अब आता है एरिया. ये वाला एरिया क्या होंगे? So this is the most important part of this numerical area. अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं. अब एरिया अगर आपको पूछा जाए व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द जंक्शन, सो एरिया ऑफ द जंक्शन को आपको समझने के लिए ये जो मेरा सोर्स रीजन है, सोर्स रीजन क्या यहां पे डोप किया गया है, यहां पे तो डोपिंग है, उसके साथ आपका ये वाले सेक्शन पे भी डोपिंग है, मतलब यहां पे भी डोपिंग है, यहां पे भी डोपिंग है, ये पूरा एक लेंथ बराबर आपका ए से डोप किया गया है। सो ये भी डोपिंग आपका सोर्स रीजन है, ये भी आपका सोर्स रीजन है, और थोड़ा सा रीजन आपका गेट टर्मिनल के नीचे भी है। सो दैट मीन्स इफ आई वांट टू ड्रॉ द सोर्स टर्मिनल कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। आई एम ड्रॉइंग द सोर्स टर्मिनल। सो सोर्स टर्मिनल पे आपका इस तरीके का डोपिंग 3D डायग्राम होंगे। नाउ आई कैन ड्रॉ the source terminal like this. So you can see this is the 3D diagram or 3D region of this source region. आपको लग सकता है कि सर डोपिंग तो सिर्फ इस रीजन पे, डोपिंग इस रीजन पे नहीं, ये लंबा बराबर आपको डोपिंग किया गया है, एक लेंथ बराबर। सो ये वाला आपका डोपिंग रीजन है, पूरा ये सोर्स है, ये पूरा सोर्स है, यहाँ पे मेरा N+ डोपिंग है। अब देखो इफ आई वांट टू फाइंड द जंक्शन कैपेसिटेंस एरिया, अब जंक्शन कैपेसिटेंस एरिया कहाँ पे होगा, यहाँ पे कितने सरफेसेस हैं, कितने सरफेसेस, अब देखिए बॉडी कहाँ पे है, बॉडी आपका ये पूरे रीजन पे बॉडी है। सो बॉडी कौन से सरफेस के पास होंगे, तो ये जो मेरा सामने वाला सरफेस है इसके साथ मेरा बॉडी रहेगा। ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, मतलब आपका ये वाले सरफेस का मैं नाम दे रहा हूं A1, ये सामने वाला सरफेस। पीछे वाला जो सरफेस है, पीछे वाला सरफेस को मैं बोल रहा हूं A2। सिमिलरली यहाँ पे जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसको मैं बोलूंगा A3। सिमिलरली ये सरफेस, बैकवर्ड सरफेस, दिस सरफेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, सो ये वाला सरफेस आपका होगा A4 सरफेस। सिमिलरली और एक सरफेस है, ये जो नीचे वाला सरफेस है, एकदम नीचे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सरफेस है, ये वाले सरफेस को मैं बोलूंगा F5। अब टॉप सरफेस है क्या है ऊपर में। अब कौन से सरफेस के साथ मेरा बॉडी रहेगा, मतलब सबस्ट्रेट रहेंगे। पहला आप देख सकते हैं कि आपका जो सामने वाला सरफेस है उसके साथ तो बॉडी रहेगा ही, मतलब A1 सरफेस के साथ बॉडी रहेंगे। फिर आपका A3 सरफेस, A3 सरफेस कौन सा है, यहां से लेकर ये वाला सरफेस आपका A3 है,
ये वाले सरफेस के साथ भी इसके साथ बॉडी रहेंगे, पीछे वाला जो A4 सरफेस है इसके साथ भी बॉडी रहेगा, A2 सरफेस जो है उसके साथ भी बॉडी रहेंगे, और A5 सरफेस जो है उसके नीचे भी बॉडी रहेगा। बट ये जो टॉप सरफेस है, इस टॉप सरफेस के ऊपर कोई बॉडी नहीं रहेंगे। मतलब आपका जो टोटल सरफेस होगा जो बॉडी के कांटेक्ट में होंगे, दैट इज A1, A5, A3, A4, A2. So what are the total surface that is in contact to the body? So we can say the total surface in contact to the body. कौन सा सरफेस है? पहला है A1 सरफेस, मतलब एकदम फ्रंट का सरफेस है। फिर एकदम पीछे वाला सरफेस भी कांटेक्ट पे है बॉडी में। फिर इस साइड का जो सरफेस है A3, ये भी कांटेक्ट पे होंगे। फिर इस साइड का जो सरफेस है ये वाला A4 सरफेस भी आपका कांटेक्ट पे होंगे बॉडी के साथ, और नीचे वाला जो A5 सरफेस है वो भी कांटेक्ट में होंगे। बट ये जो टॉप सरफेस है, ये वाला टॉप सरफेस, दिस सरफेस इज नॉट कांटेक्ट टू द बॉडी, सो वो जंक्शन कैपेसिटेंस के लिए काम नहीं करेंगे। जंक्शन कैपेसिटेंस के लिए आपका ये पांचों सरफेस ही काम करेगा। सो नाउ व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया? यहां पे टोटल एरिया क्या होंगे? टोटल एरिया विल बी ये A1 का एरिया प्लस A2 का एरिया प्लस A3 का एरिया प्लस A4 का एरिया प्लस A5 का एरिया। दैट मीन्स ये जो A1 है, लेट अस राइट द डायमेंशन। यहां पे देखिए कितना है, 0.2 माइक्रोमीटर। सो यहां पे ये वाला मेरा 0.2 माइक्रोमीटर। ये डायमेंशन क्या है? दिस डायमेंशन इज ऑल्सो 0.2 माइक्रोमीटर। और ये वाला लेंथ क्या है? दिस लेंथ इज नथिंग बट ये जो 1 माइक्रोमीटर का लेंथ है यहां से लेकर यहां तक। सो दिस इज 1 माइक्रोमीटर। अब वी कैन फाइंड द टोटल एरिया ऑफ A1, A2, A3, A4, A5। अब देखिए A1 का जो एरिया होगा, A2 का जो एरिया होंगे, दोनों बराबर होगा, सेम होगा। सो वी कैन से दैट A1 इज इक्वल्स टू A2, और एरिया क्या होंगे? 0.2 इंटू 0.2, सो 0.2 इंटू 0.2 माइक्रोमीटर का स्क्वायर, बिकॉज एरिया निकाल रहे हैं हम लोग। अब देखिए ये जो A3 एरिया है, ये जो A3 एरिया होगा और यहाँ पे जो A4 एरिया है, ये दोनों का मेरा एरिया सेम होंगे। सो दैट मीन्स A3 का जो एरिया होगा प्लस A3 का जो एरिया होंगे और A4 का जो एरिया होगा, A4 का जो एरिया होंगे, और यहाँ पे जो A5 का एरिया है, A5 मतलब ये नीचे वाला सरफेस, बॉटम सरफेस, ये नीचे वाला सरफेस। सो A5 का सरफेस भी एरिया सेम होंगे, क्योंकि देखिए A3 का सरफेस एरिया क्या होंगे? यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर और यहाँ पे आपका 0.2 माइक्रोमीटर। सो 1 माइक्रोमीटर इंटू 0.2 माइक्रोमीटर। अब A5 का एरिया क्या होगा? A5 मतलब ये जो एरिया है बॉटम सरफेस, तो यहाँ पे ये लेंथ कितना है? 0.2 माइक्रोमीटर। ये वाला लेंथ कितना है? 1 माइक्रोमीटर। सिमिलरली होंगे, सिमिलरली A4 का एरिया भी 1 माइक्रोमीटर इंटू 0.2 माइक्रोमीटर। सो ये हुआ मेरा टोटल एरिया। अब व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस वैल्यू क्या होगा कि CJ, द टोटल जंक्शन कैपेसिटेंस बिटवीन द सोर्स एंड द ड्रेन, सोर्स एंड द बॉडी, सोर्स और बॉडी के बीच में जंक्शन कैपेसिटेंस क्या है? सोर्स और बॉडी के बीच में मेरा जंक्शन कैपेसिटेंस होगा एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन कौन सा आएगा? एप्सिलॉन ऑफ SI इनटू एप्सिलॉन ऑफ 0, बिकॉज एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू, कोई भी एप्सिलॉन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन R इनटू एप्सिलॉन 0। अभी एप्सिलॉन R क्या है? एप्सिलॉन ऑफ SI। सो एप्सिलॉन ऑफ SI इनटू एप्सिलॉन ऑफ 0 डिवाइडेड बाय W। W मतलब विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर कितना है? 10 नैनोमीटर। सो डिवाइडेड बाय 10 नैनोमीटर, यहाँ पे 10 टू द पावर -9 कर दिया मैंने। उसके साथ मेरा एरिया क्या होंगे? एरिया विल बी द एरिया, टोटल एरिया ऑफ दिस 5 सर्फेसेस। सो दैट मीन्स वी कैन से 2 इंटू A1 प्लस 3 इंटू A3, 3 इंटू A3, ये मैं लिख सकता हूं, तीनों सरफेस प्लस 2 सरफेस। अब लेट अस पुट द वैल्यू। तो एप्सिलॉन ऑफ SI का वैल्यू कितना है? 11.77, 11.7।
तो यहाँ पे लिखिए 11.7। एप्सिलॉन 0 का भी वैल्यू गिवन है 8.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सो 8.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। उसके साथ मेरा आएगा 2। यहाँ पे A1 का वैल्यू क्या है, दिस वन। सो A1 इक्वल्स टू 0.2 इंटू 0.2 माइक्रोमीटर का स्क्वायर। उसके साथ 3 इंटू A3, A3 मतलब ये वाला, सो प्लस 3 इंटू A3 मतलब 1 माइक्रोमीटर। यहाँ पे 1 इंटू 0.2 कर देते हैं, 1 इंटू 0.2, और ये भी मेरा माइक्रोमीटर का स्क्वायर। सो दिस विल बी द टोटल। अब क्या करना है, ये जो माइक्रोमीटर है, ये माइक्रोमीटर को मुझे मीटर पे कन्वर्ट करना है। सो माइक्रोमीटर को बाहर लिख सकता हूं मैं। सो मैं इसको, ये जो माइक्रोमीटर स्क्वायर है, ये माइक्रोमीटर स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, माइक्रोमीटर स्क्वायर। सो नाउ व्हाट विल बी द फाइनल इक्वेशन, तो यहाँ पे आएगा 11.7 इंटू 8.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मतलब 10 टू द पावर माइनस 8। और उसके साथ क्या होगा, 0.2 इंटू 0.2 मतलब 0.2 का स्क्वायर मतलब 0.04 के साथ 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो यहाँ पे होंगे 2 इंटू 0.04। अब यहाँ पे क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0.2, उसके साथ माइक्रोमीटर का स्क्वायर है, सो 10 टू दी पावर माइनस 6 का स्क्वायर यहां पे डाल दिया, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना है। अब कैलकुलेटर को निकालिए, कैलकुलेटर निकालने के बाद इसको सॉल्यूट कीजिए, यहां पे इसको सिंप्लीफाई कीजिए। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपका जो वैल्यू आएगा दैट विल बी, इफ यू डू दिस कैलकुलेशन इन द कैलकुलेटर यू विल गेट द वैल्यू एज 7 into 10 to the power minus 15 farad, and this is nothing but the 7 picofarad. So this is the 7 picofarad. 7 pico नहीं, femtofarad होंगे, sorry, this is the femtofarad. Femtofarad means आपका 10 to the power minus 15 farad होते हैं. So this is how we have calculated the value of the सोर्स बॉडी जंक्शन कैपेसिटेंस, मतलब सोर्स और बॉडी के बीच में जो जंक्शन कैपेसिटेंस होंगे उसको मैंने कैलकुलेट किया, और यहाँ पे वैल्यू आया 7 फेम्टोफैराड। 7 फेम्टोफैराड मींस 7 into 10 to the power minus 15 farad. So this is how we can calculate the value of the source and the body junction capacitance. Now let us see how to find the gate source overlapping capacitance. अब गेट सोर्स ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस का मतलब आपका टर्मिनल यहाँ पे गेट है, नीचे सोर्स है, ये दोनों के बीच में एक ओवरलैपिंग रीजन है, यहाँ से लेकर ये डेल रीजन आपका ओवरलैपिंग हो रहा है। सो ये जो ओवरलैपिंग रीजन होगा, इस ओवरलैपिंग रीजन के लिए आपका कैपेसिटेंस क्या आएंगे। सो नाउ लेट अस इनलार्ज दिस पार्ट, ये वाले पार्ट को मैं अगर इनलार्ज करूंगा, सो आई कैन ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस। सपोज दिस वन इज द गेट टर्मिनल, और यहाँ पे मेरा ऑक्साइड लेयर है और यहाँ पे मेरा मेटल का लेयर होगा। सो दिस इज द मेटल लेयर, आई एम जस्ट इनलार्जिंग दैट पार्ट ओनली। ये मेरा ऑक्साइड है, ये मेरा ऑक्साइड। अब इसके साथ मेरा सोर्स है, इसके साथ मेरा सोर्स होंगे यहाँ पे, दिस इज द सोर्स विच इज इन प्लस रीजन, ये मेरा सोर्स है। अब ओवरलैपिंग रीजन कौन सा है, दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन डेल, और ये डेल कितना होगा, 20 नैनोमीटर का डेल है, सो 20 नैनोमीटर का डेल। अब ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, इस ओवरलैपिंग रीजन के लिए यहाँ पे मेरा कौन सा टर्मिनल, गेट। अब ये ओवरलैपिंग टर्मिनल, ओवरलैपिंग जो रीजन है गेट और सोर्स के बीच में, इसके लिए मेरा ये कैपेसिटेंस क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस। अब ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस को अगर ढूंढना है तो अब देखिए, इसको मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह सोच सकता हूं। कैसे, ये ऊपर का टर्मिनल कौन सा है, ये मेरा एक मेटल है, दिस इज अ मेटल, ये मेरा ऑक्साइड। सो लेट अस ड्रॉ अ मेटल प्लेट। इफ आई ड्रॉ अ मेटल प्लेट, सो दिस इज द मेटल प्लेट, ये मेरा मेटल का प्लेट है जो मेरा गेट के साथ कनेक्टेड है। सो दिस इज द गेट, मेटल प्लेट, और उसके नीचे आपका क्या है, ऑक्साइड लेयर। तो यहाँ पे आपका एक ऑक्साइड लेयर है कुछ इस तरीके का,
आई एम ड्रॉइंग ओनली द ओवरलैपिंग रीजन, मतलब ये सिर्फ ये वाले रीजन को मैं ड्रॉ करूंगा, सिर्फ ओवरलैपिंग रीजन को। दिस रीजन को मैं एनलार्ज करते हुए यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से। ये वाले रीजन को मैं एनलार्ज करते हुए इसको ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे। आप देखिए ये मेरा ऑक्साइड लेयर है, ये वाला ऑक्साइड लेयर, ये वाले ऑक्साइड लेयर यहां पे आएंगे, तो ये मेरा ऑक्साइड का लेयर होगा। और उसके नीचे क्या होंगे, सेमीकंडक्टर जो मेरा N+ डोप्ड है, तो सेमीकंडक्टर जो मेरा N+ डोप्ड है। सो दिस इज द N+ रीजन, और ये वाला टर्मिनल आपका क्या है, सोर्स है, ये मेरा सोर्स है। अब देखिए सिंपल एक मॉस कैपेसिटर है, इसके अंदर मॉस कैपेसिटर जिसके अंदर मेरा ऑक्साइड है, यहाँ पे N+, यहाँ पे मेटल। अब इस वाले मॉस कैपेसिटर का जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होंगे, कैपेसिटेंस निकालने के लिए C विल बी एप्सिलॉन A बाय ये जो थिकनेस है, ये वाला थिकनेस T ऑक्साइड, ऑक्साइड का थिकनेस आएगा। सो T ऑक्साइड नीचे आएंगे, T ऑक्साइड। अब देखिए एप्सिलॉन तो क्या होगा, एप्सिलॉन इज नथिंग बट द परमिटिविटी ऑफ दिस ऑक्साइड लेयर। ये वाले ऑक्साइड लेयर का मुझे परमिटिविटी डालना है। ऑक्साइड लेयर का परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन OX, और नीचे होगा आपका T ऑक्साइड, उसके साथ एरिया। अब एरिया क्या है, एरिया मतलब ये जो मेटल प्लेट है, ये जो ओवरलैपिंग रीजन है, इस ओवरलैपिंग रीजन का एरिया, मतलब ओवरलैपिंग रीजन का एरिया क्या होंगे। सो दिस इज द ओवरलैपिंग रीजन, ये मेरा ओवरलैपिंग रीजन है। सो ये ओवरलैपिंग तो आपको लेंथ विथ W बराबर है, यहाँ पे लेंथ स्ट्रिप है, एक स्ट्रिप होगा, तो मैं लिख सकता हूं कि ये जो मेरा विथ होगा ये कितना है, डेल है, ये डेल है। सो दिस इज नथिंग बट द डेल। अब ये वाला लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ आपका तो W ही होगा ना, यहाँ पे W है, W लेंथ का है। सो दैट मीन्स दिस विल कम आउट टू बी W, ये मेरा W है। सो ये मेरा डेल है, ये मेरा W है, यू कैन सी दैट। सो दैट मीन्स वी कैन से दिस इज द डेल लेंथ, और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ मेरा W है। अब तो नीचे जो मेटल जो मेरा ओवरलैपिंग रीजन है, इस ओवरलैपिंग रीजन का एरिया क्या होंगे, ओवरलैपिंग एरिया का जो एरिया होगा दैट विल बी डेल इंटू W। सो दैट विल बी डेल इंटू W, डेल इंटू W। तो मैं इससे ओवरलैपिंग के लिए जो कैपेसिटेंस होगा, ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस, दिस ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकता हूं इसको, आपका एप्सिलॉन ऑक्साइड। सो एप्सिलॉन ऑक्साइड मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड 3.9, तो इसको मैं लिख सकता हूं 3.9, उसके साथ एब्सोल्यूट परमिटिविटी 8.9 इंटू 10⁻⁻12 यहाँ पे, उसके नीचे T ऑक्साइड। अब देखो T ऑक्साइड का वैल्यू कितना है, 1 नैनोमीटर, यही तो मेरा T ऑक्साइड है 1 नैनोमीटर। सो यहाँ पे T ऑक्साइड बिठा दीजिए। सो 1 इंटू 10⁻⁹। उसके साथ मेरा डेल वैल्यू चाहिए, डेल वैल्यू क्या है, डेल वैल्यू यहाँ पे गिवन है 20 नैनोमीटर, तो यहाँ पे 20 इंटू 10⁻⁹। उसके साथ मेरा जो मल्टीप्लीकेशन होगा W का विथ क्या है, यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर। सो 1 into 10⁻⁶. So this will be the value of the overlapping capacitance. Now in this case, if I want to find, अब देखिए C overlapping का क्या वैल्यू आएंगे। सो ओवरलैपिंग का जो वैल्यू आएगा, ओवरलैपिंग कैपेसिटेंस का वैल्यू, यहाँ पे 10⁻�9 है, यहाँ पे 10⁻12 है। सो अल्टीमेटली आपका होगा 3.9 इंटू 8.9 इंटू यहाँ पे 10⁻⁹, 10⁻12, सो अल्टीमेटली इट विल बी 10⁻3, और यहाँ पे आपका है 20 इंटू 10⁻⁹, उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे आपका 1 इंटू 10⁻⁶। नाउ टेक आउट योर कैलकुलेटर एंड जस्ट कैलकुलेट दिस। इफ यू कैलकुलेट दिस, देन you will get the value of the C overlapping. So after calculating this, what will be the value? I have calculated the value. The value will be C overlapping
किसके अंदर? between the gate and the source, between the gate and the source, it will be 0.7 into 10 to the power minus 15 farad, which will be ultimately equals to 0.7 femtofarad. Femtofarad. So this is the answer of the overlapping capacitance between the gate and the source. So this was a numerical related to the 3D diagram, you can see, and hopefully you have enjoyed the video, and thank you for watching the video.